केजरीवाल ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ऊपर जो बैठे होते हैं मुख्यमंत्री मंत्री, वो अगर अच्छे हों, ईमानदार हों, सारी अफसरशाही अच्छा काम करती है। कसूर अफसरशाही का नहीं है। और अगर ऊपर बेईमान लोग हों तो सारी अफसरशाही फिर उनके साथ बेईमान। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ। क्योंकि कैप्टन साहब तो अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकलते थे। चन्नी साहब ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ईमानदार भगवंत मान आएगा, ईमानदार मंत्री आएंगे, तो सारी अफसरशाही देखना, यही अफसरशाही कितना अच्छा काम करके दिखाई है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? आप सुखबीर बादल साहब मेरे खिलाफ कुछ, केवल मेरे को गाली देते हैं, चन्नी साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। चन्नी साहब केवल मेरे को गाली देते हैं, सुखबीर बादल के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। कल प्रियंका गांधी आए, आज राहुल गांधी आए, अमित शाह आए, मोदी जी आए, ये सारे केवल मेरे को गाली दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और केवल हमें ठोक रहे हैं सुबह से शाम। ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਆਮ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? आम जो भी ईमानदार कौन है तीनों, वो दो जो है उनसे इतना ही पूछ लेना जी आपकी टोटल संपत्ति कितनी है। उनको भी नहीं पता कितनी है, इतना कमा रखा है दोनों ने, इतना कमा रखा है, कहाँ से आया है, सब लूट रखा है। और ये भगवंत मान जो है, इसकी जो जमा पूंजी थी, जो कॉमेडियन एक्टर होता था तब कमा रखा था, वो भी नहीं बचा इसका, वो भी खत्म हो गया। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ। ਗ੍ਰੀਕ ਸਟੇਟਮੈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਰੇਸਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। शुक्रिया जी। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, मिजाज की नजर आ रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है जी लोगों से, और बहुत कभी कभी डर भी लगता है। बहुत ज़्यादा लोगों की उम्मीदें हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को विश्वास हो रहा है। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि सबकी उम्मीदें पूरी कर पाए हम लोग। केजरीवाल साहब ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। मैं तो एक आम आदमी हूँ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ डिफरेंस ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ये तो है, लेकिन अफसरशाही जो है ना उसकी गलती नहीं है। दिल्ली में हमने देखा जी, हमारी जब सरकार बनी, ऊपर जो बैठे होते हैं मुख्यमंत्री मंत्री, वो अगर अच्छे हों, ईमानदार हों, सारी अफसरशाही अच्छा काम करती है। कसूर अफसरशाही का नहीं है। और अगर ऊपर बेईमान लोग हों तो सारी अफसरशाही फिर उनके साथ बेईमानी करती है। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ अभी ਤੇ। तक, क्योंकि कैप्टन साहब तो अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकलते थे। चन्नी साहब ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी, अब ईमानदार भगवंत मान आएगा, ईमानदार मंत्री आएंगे, जी, तो सारी अफसरशाही देखना, यही अफसरशाही कितना अच्छा काम करके दिखाएगी आपको। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? पिछली बार हमने कई सारी गलतियां करी थी, हमसे गलतियां हुई थी। इस बार फूक फूक के हम कदम रख रहे हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ भी हमसे भी गलती ना हो। और अब 3-4 दिन रह गए, 3-4 दिन में ये सारे, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ये सारे मिल गए हमारे खिलाफ। आप सुखबीर बादल साहब मेरे खिलाफ कुछ, केवल मेरे को गाली देते हैं, चन्नी साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। चन्नी साहब केवल मेरे को गाली देते हैं, सुखबीर बादल के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। कल प्रियंका गांधी आए, आज राहुल गांधी आए, अमित शाह आए, मोदी जी आए, ये सारे केवल मेरे को गाली दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं जी, और केवल हमें ठोक रहे हैं सुबह से शाम तक। हमारा क्या कसूर है? हमने कहा जी हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, हम सड़क ठीक करना चाहते हैं, बिजली ठीक करना चाहते हैं।
ये लोग नहीं चाहते हम्म। कि पंजाब ठीक हो, केजरीवाल ये साहब लोग नहीं चाहते कि पंजाब जीते। हम्म ये लोग, इनको ये डर है कि अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो इनकी परमानेंटली लूट बंद हो जाएगी। ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਉਹੀ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ लेकिन कुछ चीज़ है जो ये नहीं कर सकते। हम्म वहाँ तो ये हमारी रीस कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम कहते हैं हम स्कूल अच्छे करेंगे। जी कोई पार्टी है जो कह रही है स्कूल अच्छे करेंगे, कर ही नहीं सकते। आज अगर कांग्रेस कह दे स्कूल अच्छे करेंगे तो वो गएंगे राजस्थान में करके दिखाते, 5 साल कर लेते। अभी टाइम मिला कोई कहता है कि अस्पताल अच्छे करेंगे, कोई नहीं कहता, उनसे होएगा ही नहीं, उन्होंने करा ही नहीं आज तक। उन्होंने लूटने के सिवा कुछ नहीं करा। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? एक तो जी भ्रष्टाचार पे चोट करनी है और रोजगार के बारे में तुरंत कुछ करना पड़ेगा। बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हैं, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ प्रेफरेंस इनके ऊपर। मैंने भगवंत से बात की थी, उनको भी यही लगता है कि ये 2-3 चीजें ऐसी है जिसपे तुरंत करना पड़ेगा। बाकी अपने जितने भी हमारे ऐलान हैं 5 साल में वो सारे आपने एक रिपोर्ट कार्ड दे दिया। ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नहीं, हम तो जनता से पूछा था, जनता अगर आपका नाम ले देती हम आपको बना देते। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, है ना? पर मैं बाद में तो हमने जनता से ही पूछा था। हम जनता, हमने ये नहीं कहा था भाई किसी धर्म का या किसी जात का देना। जनता ने भगवंत के नाम पे मोहर लगाई। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये तो बीजेपी कांग्रेस वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पंजाब का भी, पंजाबियों का भी और उनके परिवार का भविष्य बहुत सोना होएगा, बहुत अच्छा होएगा, बहुत सुनहरा होएगा। अगर ये आ गए दोबारा तो ये लूट जारी रहेगी। ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਆਮ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? आम जो भी ईमानदार कौन है इनमें तीनों में? वो दो जो है उनसे इतना ही पूछ लेना जी आपकी टोटल संपत्ति कितनी है। उनको भी नहीं पता कितनी है, इतना कमा रखा है दोनों ने जी, इतना कमा रखा है, कहाँ से आया है, सब लूट रखा है। वैसे और ये भगवंत मान जो है, इसकी जो जमा पूंजी थी, जो कॉमेडियन एक्टर होता था तब कमा रखा था जी, वो भी नहीं बचा इसका, वो भी खत्म हो गया बेचारे। वैसे लगता है कि जिस तरीके नाल तुसीं कोशिश कर रहे हो आम एक परिभाषा चेंज करने दी, एक पासे सुखबीर बादल अपने वालों ऐलान कर रहे ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ दुरुपयोग ਹੁੰਦਾ पावर ਦਾ। इस बार खूब पैसे बटते हैं आखिरी 4 दिन में, खूब दारू बटती है। तो मैं आपको एक वो सुनाता हूँ। एक लड़का आया मेरे पास, तो मैंने उससे पूछा किसको वोट दोगे, तो बोला जी झाड़ू को जी। तो मैंने कहा फिर वो आखिरी दिन पैसे लेके आएंगे, दारू लेके आएंगे, फिर क्या करोगे? तो कहते जी पैसे और दारू उनसे ले लूंगा, वोट झाड़ू को दे दूंगा। फिर मैं कहा नहीं ये गलत बात है। मैंने कहा फिर उसको सारा मैंने समझाया। मैंने कहा देख हम बिजली फ्री करेंगे, हम शिक्षा अच्छी करेंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, वहाँ फ्री एजुकेशन मिलेगी, हम अस्पताल अच्छे बनाएंगे, वहाँ सबका फ्री इलाज होगा, हम हर महिला को 1000 रुपये देंगे, और भी कई सारी चीज़ें। मैंने कहा ये सारा मिला के 5 साल में एक परिवार को कम से कम 7 लाख रुपए का सीधा बेनिफिट होगा जी। मैंने कहा वो तेरे को क्या देंगे, 1000 रुपये, 2000 रुपये? तो मैंने कहा मैं तेरे को 7 लाख रुपए का फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ। फिर वो सोचने लग गया, फिर कहता जी ऐसा करता हूँ उनसे भी ले लूंगा 2000 रुपये, आपके भी रख लूंगा 7 लाख। मैंने कहा कैसे? कहता है चुनाव के पहले उनसे ले लूंगा, वोट झाड़ू को दे दूंगा, सरकार आपकी बना दूंगा, फिर आप मेरा 7 लाख का फायदा करा देना। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕੁਝ ਰੈਪਿਡ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ? ईमानदार। ईमानदार है। विक्रम सिंह मजीठिया? दूसरों पे मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करता। सुखबीर सिंह बादल? मैं दूसरों के बारे में नहीं, किसी बारे नहीं बोलना ना। आजकल ये भी जिक्र चल रहा है कि गाली गलौज की राजनीति नहीं करता। वो मेरे को गालियां देते हैं जी, मेरे को राजनीति करनी भी नहीं आती, मेरे को बस काम करना आता है। प्रधानमंत्री मोदी बारे भी कुछ नहीं बोले काफी समय तो, किसी के खिलाफ कुछ नहीं। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਆਮ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।